Hello students, I welcome you all in another lecture where you will learn about deletion of nodes from various positions in a given linked list. So let us see how this can be done. There are three positions from where you can delete any node. First one is the start of the linked list. That is, you want to delete the head node or the start node or the first node. Second, you can delete the node from the end of the linked list. Means you can delete the tail node. Means the last node of the linked list. And third one is the general, where you can delete any node of the linked list from location 1 to location n. Means from the first position, from the first node to the last node, or in between you can delete any node. So first of all, we will see about the deletion of node from the start of the linked list. Means here we have to delete the head node. Let us take a linked list of 4 nodes where these nodes are at locations 1000, 1500, 4000 and 6000. The first node is situated at the location 1000, means the value of the head is 1000. So if we have to delete this first node, it means we have to shift our head to the second node because the first node is to be deleted. And after deletion of the first node, the second node will be the lead node or the first node. It means when we are planning to delete the first node, then we have to shift the head node to the second node. And after shifting, we can free this location. This location means the location 1000. This location is, this location will be free after deletion. Free means this location can be utilized by any other process which want to use it. So step 1 is store address of the start node or the head node to a pointer variable so that this location can be deleted later. Because head node is shifted to the second node, so there must be some pointer variable so that we can identify this location 1000 so that we can delete it further. कहने का मतलब ये है कि जब हम हेड नोड को सेकंड नोड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक कोई ऐसा पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इस लोकेशन को डिलीट कर सकें, फ्री कर सकें. तो इसीलिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल सपोज करिए ले लिया p, जिसमें हमने 1000 का एड्रेस स्टोर कर लिया. मींस हेड का जो भी वैल्यू है उसको p में ट्रांसफर कर लिया. अब इसके बाद हम हेड को मूव कर देंगे और ये लोकेशन जो p होगी इसको आगे चल के हम डिलीट कर लेंगे. तो ये पहला स्टेप हो गया. p इज इक्वल टू हेड मीन्स हेड की वैल्यू हमने नए पॉइंटर वेरिएबल p में ट्रांसफर कर ली. यहाँ पर हेड और p दोनों नोड टाइप के पॉइंटर हैं. अब ये जैसे हेड की वैल्यू 1000 थी तो p में 1000 ट्रांसफर हो गया. p में 1000 ट्रांसफर होने का मीनिंग क्या हुआ कि p और हेड सेम ही लोकेशन पर पॉइंट करने लगे जिस लोकेशन का एड्रेस है 1000. नाउ मेक द सेकंड नोड एज ए हेड नोड. चूंकि पहले वाले को डिलीट करना है तो सेकंड नोड को हेड नोड बनाना पड़ेगा, यानी कि हेड को मूव करना पड़ेगा सेकंड नोड पे. तो हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, क्योंकि हेड अभी कहाँ है 1000 पर और हमें हेड को ले जाना है 1500 पर. तो 1500 कहाँ स्टोर है? हेड की नेक्स्ट फील्ड में. हर नोड की 2 फील्ड होती है, डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड. चूंकि हमें हेड को 1500 लोकेशन पे ले जाना है, मींस हेड के अंदर हमें क्या वैल्यू ट्रांसफर कर देनी है? हेड एरो नेक्स्ट की वैल्यू. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट. हेड एरो नेक्स्ट मींस 1500. ये 1500 जैसे ही हेड में ट्रांसफर होगा तो हेड की वैल्यू 1000 से चेंज होकर 1500 हो जाएगी. और जैसे ही 1500 हुई ये हेड मूव करके यहाँ से सेकंड लोकेशन पर आ गया. एक बार दोबारा देखिए, हेड यहाँ था, डायग्राम में देखिए हेड यहाँ पर था, और जैसे ही हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा हेड शिफ्ट करके सेकंड नोड पर आ जाएगा 1500 पर. अब देखिए हेड हमने शिफ्ट कर लिया. नाउ वी हैव टू जस्ट delete or free this location which is stored in the pointer variable p. यानी कि स्टेप 3 हो गया हमारा make free the location where p points. That is we call a free function and pass the address p to this function free p. जैसे ये free p हुआ ये लोकेशन डिलीट हो जाएगी. तो 4 नोड थे, अभी 3 रह गए. सिमिलरली अगर आपको और कोई डिलीट इसी तरह अगला हेड नोड डिलीट करना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. तो अगर तीनों स्टेप्स को हम समराइज करें तो क्या करेंगे? हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसको हेड नोड से इनिशियलाइज करेंगे, मींस p इज इक्वल टू हेड.
फिर सेकंड स्टेप था हमारा हेड को मूव करके सेकंड नोड पर ले आना है, चूंकि फर्स्ट नोड यानी हेड नोड को डिलीट करना है, इसलिए हमने क्या लिखा, हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, तो हेड मूव करके सेकंड नोड पर आ गया। अब थर्ड केवल इतना काम बचा है कि हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पी को फ्री कर देना है, तो हमने फ्री फंक्शन कॉल किया और फ्री पी लिख दिया, तो ये लोकेशन डिलीट हो गई। अब हम सेकंड केस को डील करते हैं, वेयर वी हैव टू डिलीट द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, मींस टेल नोड को डिलीट करना है। तो दोबारा से हम उसी लिंक लिस्ट को कंसीडर करते हैं, वापस जिस नोड को डिलीट किया हमने उसको वापस बना दिया कि 4 नोड कम से कम हो जाए। अभी हमें लास्ट नोड डिलीट करना है जिसका एड्रेस आपको डायग्राम में 6000 दिखाई दे रहा है, इस नोड को हमें डिलीट करना है। तो अगर लास्ट नोड को डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है जो सेकंड लास्ट नोड होगा वो लास्ट नोड बन जाएगा। जब 6000 नोड डिलीट हो जाएगा तो ये जो 4000 लोकेशन का नोड है ये लास्ट नोड बन जाएगा। तो यहाँ इस सारी प्रोसेसिंग इस पर हैंडल करनी होगी, इसके लिए हमें एक पॉइंटर ला करके यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि जिस नोड को डिलीट करना हो, आगे भी हम यही स्ट्रेटेजी रखेंगे फर्दर लेक्चर्स में भी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी, सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी, कि जिस नोड को डिलीट करना होगा उससे ठीक पहले एक पॉइंटर को लाके सेट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हम सेकंड नोड को इजीली डिलीट भी कर सकेंगे और फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसी के नेक्स्ट फील्ड में नल स्टोर करा के इसी को लास्ट नोड बना देंगे। तो देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमें इसको डिलीट करना है, हम ये दिखाने की कोशिश की कि ये हमें डिलीट कर देना है, हमारा टारगेट ये है। तो स्टेप 1 होगा सेट ए पॉइंटर एट ए नोड दैट लाइज जस्ट बिफोर द नोड व्हिच इज टू बी डिलीटेड। अब हमें यहाँ पर 6000 नोड डिलीट करना है, मींस कहने का मतलब है एक पी पॉइंटर या क्यू पॉइंटर या कोई भी पॉइंटर ला करके 4000 लोकेशन पर सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले चूंकि हमारी किसी भी लिंक लिस्ट में जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी हेड नोड से स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट और इनिशियलाइज ए पॉइंटर p विद द वैल्यू ऑफ हेड नोड, यानी कि जहां पर हेड नोड है वहीं से एक पॉइंटर वेरिएबल p इनिशियलाइज कर लिया, हमेशा ऐसा ही करना होगा। और अब p को तब तक मूव करना है जब तक वो 4000 पे ना पहुंच जाए। अब ये कैसे डील करेंगे कि वो 4000 पे रुक जाए, तो इसको ऐसे देखते हैं हम, देखिए अगर इस लोकेशन पर हम हैं तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल होगा। देखिए अगर p हमारा यहाँ पर रुक जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि p का नेक्स्ट मीन 6000 और 6000 का नेक्स्ट मीन्स नल। तो अगर ये कंडीशन आ जाए कि p एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो हमें स्टॉप कर जाना है, और जब तक p एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक हमें p को जंप कराते रहना, मूव कराते रहना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखिए मूव p पॉइंटर अंटिल सेकंड लास्ट नोड दैट इज विद एड्रेस 4000। तो हमने क्या कंडीशन लिखी, व्हाइल p एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल देन मूव p टू द फॉरवर्ड लोकेशन, मींस p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट। तो अभी आप देखिए क्या p का नेक्स्ट नल है, तो p का नेक्स्ट मींस 1500 और 1500 का नेक्स्ट मींस 4000, ये वैल्यू 4000 है, नल तो नहीं है, मींस ये कंडीशन ट्रू हो गई व्हाइल लूप में जो लिखी हुई है। तो कंडीशन ट्रू हो गई मींस इटरेशन 1 जब कंप्लीट होगा तो p मूव कर जाएगा 1500 पर, आफ्टर इटरेशन 1 p बिकम्स 1500। तो जैसे ही 1500 हुआ आप देखिए p मूव करके यहाँ आ गया। दोबारा से आपको दिखाता हूँ, p इनिशियली 1000 पे था, जैसे ही फर्स्ट इटरेशन ये एग्जीक्यूट हुआ p मूव कर गया 1500 पर। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, क्या अभी p का नेक्स्ट नल है, तो p का नेक्स्ट मींस 4000 का नेक्स्ट मींस 6000, ये भी वैल्यू नल नहीं है, मींस ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई, यानी लूप एक इटरेशन और चलेगा, और जब एक इटरेशन और चलेगा तो p जंप करके 1500 से 4000 पर आ जाएगा। देखिए आफ्टर इटरेशन 2 p बिकम्स 4000 और p मूव कर गया 4000 पे, क्योंकि अगर p की वैल्यू 4000 है मींस p 4000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब जिस लोकेशन पर है यहां से फिर चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है, p एरो नेक्स्ट मीन 6000 और 6000 का नेक्स्ट मीन्स हो गया नल, यानी कि अब की बार ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि हमें कब तक मूव करना था, जब तक ये नल ना हो जाए। लेकिन अब ये नल हो चुका है, p जिस लोकेशन पर है वहां से आप दोबारा चेक करिए, p का नेक्स्ट मीन्स 6000 और 6000 का नेक्स्ट मीन्स नल, यानी कि ये कंडीशन इस बार फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो p आगे फॉरवर्ड मूव भी नहीं करेगा, हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें p को सेकंड लास्ट नोड पे ही रखना था, क्योंकि हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो ये वैल्यू हो गई p की 4000। अब हमें सिंपली क्या करना है कि एक लोकेशन p का नेक्स्ट जो लोकेशन है उसी को डिलीट करना है, तो एक पॉइंटर यहाँ सेट कर लेते हैं q, क्योंकि q को ही डिलीट करना, बाद में q को फ्री करा लेंगे। तो स्टेप 2 हो गया, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नोड व्हिच इज टू बी डिलीटेड टू एनी पॉइंटर वेरिएबल q सो दैट दिस लोकेशन कैन बी डिलीटेड लेटर ऑन। तो यानी कि p का नेक्स्ट जो है उसको हम q में असाइन कर लेते हैं, q इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट। अब p एरो नेक्स्ट मीन 6000 असाइन हो गया q में,
यानी Q पॉइंट करने लगा 6000 लोकेशन पर, डायग्राम में आप देखिए ही हो गया। अब हमें कुल मिला के करना क्या है, इस Q लोकेशन को फ्री करा देना है। तो स्टेप 3 में हम कॉल करेंगे फ्री फंक्शन, मेक फ्री द लोकेशन दैट इज स्टोर्ड इन Q, मींस फ्री Q। जैसे ही Q को फ्री करेंगे ये लोकेशन डिलीट हो गई, लोकेशन Q इज नॉट डिलीटेड। अब चूंकि लास्ट नोड डिलीट हो चुका है, तो जो अभी तक सेकंड लास्ट नोड था, यानी कि P यहां पॉइंट कर रहा है, अब इसको नया लास्ट नोड बनाना है। तो लास्ट नोड की पहचानते कैसे हैं, जिस नोड की नेक्स्ट फील्ड में नल वैल्यू होती है वो हमारा लास्ट नोड होता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू 6000 थी, 6000 की लोकेशन डिलीट हो गई, यानी कि इसकी जगह अब नल स्टोर करना है, मींस पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। जैसे नल किया, देखिए पी के नेक्स्ट में नल आ गया, तो अब हेड नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये फिनिश हो गया। 4 नोड थे, अभी 3 बचे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लास्ट नोड को डिलीट करेंगे। अब इन सारे जितने स्टेप्स हमने समझे हैं, अगर इसको प्रोग्रामिंग पर्पस से हम समराइज करके लिखेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि एक पॉइंटर वेरिएबल p, आप थोड़ा याद करो कि हमने सबसे पहला स्टेप किया था कि एक पॉइंटर वेरिएबल p लिया था जिसको हेड नोड पर सेट कर लिया था। आफ्टर दैट वी मूव दिस पॉइंटर p टू द सेकंड लास्ट नोड, मींस हमने व्हाइल लूप लगाया, इसी के थ्रू हमने p को कब तक मूव कराया, कब तक जंप कराया, जब तक कि p एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ये आके सेकंड लास्ट नोड पर फिक्स हो जाएगा। जब ये फिक्स हो गया तो इसकी नेक्स्ट, यानी कि इसका p तो सेकंड लास्ट नोड पे है, तो p का नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट नोड होगा। यानी कि लास्ट नोड का जो एड्रेस होगा उसको हमने Q में स्टोर कर दिया और इसी लोकेशन को हमने फ्री कर दिया, फ्री फंक्शन कॉल करके Q उसमें पास कर दिया, मींस ये Q लोकेशन यानी कि p का नेक्स्ट क्या है, p का नेक्स्ट मींस लास्ट नोड, वो फ्री हो गया। और जब p फ्री हो गया, सॉरी Q फ्री हो गया, तो जो p लोकेशन थी वही अब लास्ट नोड बची, यानी कि जो सेकंड लास्ट नोड था पहले, अब वो लास्ट हो जाएगा। तो उसको लास्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी नेक्स्ट फील्ड में नल स्टोर करना होगा, मींस पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो ये समरी हो गई हमारी, केस 1 और केस 2 हमने दोनों समझ लिए। अब थर्ड केस को डील करते हैं, वेयर वी हैव टू डिलीट एनी नोड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। तो लोकेशन या तो 1 होगी, अगर लोकेशन 1 हुई तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम हेड नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकेशन किसी भी लिंक लिस्ट में पहला नोड हो गया लोकेशन 1 पर, सेकंड नोड हो गया लोकेशन 2 पर, थर्ड नोड हो गया लोकेशन 3 पर, एंड सो ऑन। तो हमें अब लोकेशन वाइज डिलीट करना है। अगर किसी ने लोकेशन 1 ले लिया तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें हेड नोड डिलीट करना है, और हेड नोड डिलीट करना अभी हमने केस 1 में हेड नोड को डिलीट करना सीखा है। तो ये जो केस 1 है, डिलीशन फ्रॉम द लोकेशन इज इक्वल टू 1, मींस डिलीशन ऑफ द हेड नोड, एंड इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द केस 1। देयरफॉर वी मूव टू द केस 2। व्हाट इज द केस 2? In case 2 we have to delete any location which is greater than 1, means second, third, fourth, fifth and so on, means deletion of any node except the head node। आपकी हमें हेड के अलावा कोई, अगर लोकेशन 1 है यानी कि हमें हेड नोड डिलीट करना है, और अगर लोकेशन 1 के बियॉन्ड कोई वैल्यू है, मींस 2 3 4 5 6, मींस हमें सेकंड नोड से लेकर लास्ट नोड तक कोई नोड डिलीट करना है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे नोड डिलीट होगा। Initialize step 1, initialize any pointer p to the next node। तो हमें हेड नोड डिलीट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने पढ़ ही लिया है। अब जो लोकेशन 2 से लेकर लास्ट नोड तक की जो लोकेशन है, वहां के एलिमेंट को डिलीट, वहां के नोड को डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, फिर उसी तरह हमें सबसे पहले जिस नोड को डिलीट करना है, चूंकि हमारी स्ट्रेटेजी यही रही है, जिस नोड को डिलीट करना है उससे ठीक पहले एक पॉइंटर को फिक्स कर लेते हैं, जिससे हमें डिलीशन ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लेंगे हेड नोड से, चूंकि प्रोसेसिंग हमेशा हेड नोड से स्टार्ट होती है। तो p इज इक्वल टू हेड लिखा, मींस एक पॉइंटर p को हमने हेड नोड पर इनिशियलाइज कर लिया। ऐसे आप डायग्राम में देख रहे हो, p इज पॉइंटिंग टू द हेड नोड। नाउ सेट दिस पॉइंटर p ऑन ए नोड जस्ट बिफोर द नोड व्हिच इज टू बी डिलीटेड। अब जिस नोड को डिलीट करना है उससे ठीक पहले इस पॉइंटर को लाके सेट करना होगा। तो अब आप देखिए कौन सी लोकेशन हो सकती है, लोकेशन 2 हो सकती है, लोकेशन 3 हो सकती है, लोकेशन 4 हो सकती है, जिसे हमें डिलीट करना है। तो सपोज करिए हमें लोकेशन 2 को डिलीट करना है। तो जब लोकेशन 2 को डिलीट करना होगा तो p को मूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि लोकेशन 2 को डिलीट करना है, उससे ठीक पहले p ऑलरेडी सेट है। क्योंकि हर बार हम p को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, हेड नोड से। तो p ऑलरेडी हेड पर सेट है, मीन्स हमें इस बार p को मूवमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि मूवमेंट इन द पॉइंटर p इज 0। अब सपोज करिए कि हमें लोकेशन 3 डिलीट करना है। तो अगर लोकेशन 3 डिलीट करना होगा तो हमें p को लोकेशन 2 पर सेट करना होगा, मींस p को 1 से लाके लोकेशन 2 पर, यानी कि p में जो मूवमेंट होगा वो
1 होगा, 1 का मूवमेंट देना पड़ेगा, 1 जंप करानी पड़ेगी। अभी P इनिशियली फर्स्ट नोड पर होगा, हेड नोड पर होगा, और अगर लोकेशन 3 डिलीट करना है तो P को लोकेशन 2 पर लाना होगा, मींस मूवमेंट कितनी हुई 1। तो ये हमने लिखा, इफ वी हैव टू डिलीट द नोड एट लोकेशन 3 देन मूवमेंट इन द पॉइंटर P इज 1। अब सपोज करिए कि हमें लोकेशन 4 को डिलीट करना है, तो अगर लोकेशन 4 को डिलीट करना होगा तो हमें पॉइंटर P को लाकर लोकेशन 3 पर सेट करना होगा। लोकेशन 3 पर सेट करने का मतलब P को यहाँ से लोकेशन 2 पर और लोकेशन 2 से लोकेशन 3 पर लाना पड़ेगा। मींस पॉइंटर P को हमें 2 बार मूव कराना पड़ेगा, मींस मूवमेंट इन द पॉइंटर P इज इक्वल टू 2। तो इन जनरल हम क्या कहें, देखिए हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है, इफ लोकेशन इज 2 देन मूवमेंट इज 0, इफ लोकेशन इज 3 देन मूवमेंट इज 1, इफ लोकेशन इज 4 देन मूवमेंट इज 2। मींस हर बार डिफरेंस 2 - 0 2, 3 - 1 2, 4 - 2 2, तो हर बार 2 का डिफरेंस आ रहा है। मींस इफ इन जनरल इफ वी हैव टू डिलीट द नोड एट लोकेशन n, nth लोकेशन का नोड यानी कि अगर डिलीट करना है, देन द मूवमेंट इन द पॉइंटर P will be n - 2, n then n - 2, 4 then 2, 3 then 1, means n then n - 2। अब इसको हम किसी भी लोकेशन को, चूंकि ये जनरल थर्ड केस हमारा जनरल केस है, हम लोकेशन 2 भी डिलीट कर सकते हैं, 3 भी डिलीट कर सकते हैं, 4 भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यानी कि एक जनरल हो गया, तो किसी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज वी हैव टू डिलीट द नोड एट द सेकंड लोकेशन, हमें लोकेशन 2 का नोड डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या P में कोई मूवमेंट करना पड़ेगा? कोई मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि P ऑलरेडी सेकंड को डिलीट करना है, P नोड लोकेशन 1 पर है ही है। अब हमें केवल जिस नोड को डिलीट करना है, चूंकि उसको डिलीट करने के लिए हमें उसकी एक लोकेशन चाहिए, तो हम एक नया पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं Q, और उसमें इस लोकेशन 2 के एड्रेस को सेव कर लेते हैं। मींस Q इज इक्वल टू P एरो नेक्स्ट, क्योंकि Q हमेशा P के बाद ही आएगा, क्योंकि या यूं कह लो कि P हमेशा डिलीटेड नोड, जिस नोड को डिलीट करना है उसके हमेशा पहले आएगा, और जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसका नाम Q रख रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q हमेशा P के बाद आएगा, ठीक बाद आएगा। यानी कि हम Q में जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू P एरो नेक्स्ट। तो जैसे हमने P एरो नेक्स्ट किया तो 1500 वैल्यू, चूंकि P 1000 पर था तो 1000 एरो नेक्स्ट मीन्स 1500, तो 1500 वैल्यू जैसे ही Q में असाइन हुई, Q यहाँ लोकेशन 2 पर पॉइंट करने लगा जिसका एड्रेस 1500 है। अब अगर इस नोड को डिलीट कर देना है, लोकेशन 2 को डिलीट कर देना है, इसका मीनिंग क्या है कि ये बीच से हट जाएगा, और ये नोड 1 मींस नोड ऑफ लोकेशन 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नोड एट लोकेशन 3। अगर लोकेशन 2 को डिलीट करना है, इसका मीनिंग क्या होगा, पहले वाले को तीसरे वाले से जोड़ देना है। फर्स्ट नोड विल बी कनेक्टेड टू द थर्ड नोड। तो ये कैसे करेंगे, थर्ड नोड का एड्रेस क्या है 4000। हमें मालूम है कि जब हमें पहले नोड को दूसरे से कनेक्ट किया था तो दूसरे का एड्रेस यहाँ स्टोर किया था, तो अगर पहले नोड से हमें तीसरे नोड को कनेक्ट करना, मीन्स ये जो 4000 है इसको यहाँ पर लाके सेव करना होगा। तो अब ये 4000 कहाँ है, इसको हमें कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ तो हमें डायग्राम में दिख रहा है 4000, लेकिन जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि जिस नोड को डिलीट करना है उसके बाद कौन सा नोड है। तो अगर आप इस Q नोड को लोकेशन 2 को गौर करें तो Q की नेक्स्ट फील्ड में इसी थर्ड नोड का एड्रेस सेव है, Q एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू 4000 व्हिच इज द एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड, और इसी से पहले को लिंक कराना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर Q की नेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू पड़ी है उसको P के नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दें तो ये नोड इससे डायरेक्टली जुड़ जाएगा, पहला तीसरे से जुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह, यानी कि P एरो नेक्स्ट में हमें क्या करना है 4000 स्टोर करना है। 4000 कहां से मिलेगा, Q एरो नेक्स्ट से। यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर Q एरो नेक्स्ट यानी कि 4000 को हम P एरो नेक्स्ट पर स्टोर कर दें तो ये 1500 ओवरराइट हो जाएगा 4000 से, और जैसे 1500 4000 से ओवरराइट होगा पहला नोड तीसरे नोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिलीशन का काम, बाद में हमें केवल इतना काम करना होगा, इस लोकेशन को फ्री कराना होगा। इसी तरह से हम लोकेशन 3 लोकेशन 4 किसी लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि अगर हम लोकेशन 3 को डिलीट करेंगे तो P को पहले मूव करके, लास्ट टाइम देखिए हमें P को मूव नहीं कराना पड़ा था, लेकिन अगर लोकेशन 3 डिलीट करेंगे तो पहले हमें P को मूव करके लोकेशन 2 पर लाना होगा। इसी तरह अगर लोकेशन 4 को डिलीट करना है तो P को मूव करके लोकेशन 3 पर लाना होगा, मींस P में 2 बार मूवमेंट देना होगा। तो अगर स्टेप जितना भी हमने सीखा, यानी कि स्टेप 4 को अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि स्टोर द एड्रेस ऑफ द नोड नेक्स्ट टू द पॉइंटर Q टू द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द पॉइंटर P, यानी कि Q की नेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू स्टोर है उसे उठा के P की नेक्स्ट फील्ड में स्टोर कर देना है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला थर्ड से लिंक हो जाएगा। और जब ये लिंक लोकेशन 2 का नोड का लिंक टूट जाएगा तो जस्ट इसको फ्री कर देंगे।
नाउ जस्ट मेक फ्री द लोकेशन स्टोर्ड इन पॉइंटर क्यू। अब हमें केवल पॉइंटर क्यू को फ्री करना है, तो फ्री करना है तो हम फ्री फंक्शन कॉल कर लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए क्यू को हमने कॉल किया फ्री फंक्शन और इसको हमने फ्री करा लिया, फ्री क्यू कर लिया, और ये ऑलरेडी पहले वाला कनेक्ट ही हो गया था, अब केवल लोकेशन फ्री हो गई। तो अब ये देखिए लोकेशन, अगर ये लोकेशन 1 थी, लोकेशन 2 वाला डिलीट हो गया, ये लोकेशन 3 है, लोकेशन 4 है, तो ऑटोमेटिकली आगे चल के ये चूंकि सेकंड लोकेशन डिलीट हो गई तो जो लोकेशन 3 अभी है वो आगे चल के लोकेशन 2 हो जाएगी, जो लोकेशन 4 अभी है वो आगे चल के लोकेशन ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी लोकेशन 3। ये मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री कर देना उसको। अब यानी कि जितने स्टेप हमने पढ़े हैं अगर उनको हम समराइज करें इसके लिए थर्ड केस के लिए, तो कैसे करेंगे? एक पॉइंटर को पहले हेड नोड पर सेट करेंगे, फिर यूजर से चॉइस ले लेंगे कि कौन सी लोकेशन के नोड को डिलीट करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट जो भी है उसको कौन सा को डिलीट करना है। और उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, लोकेशन -2 टाइम्स उसे रन कराएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले एनालिसिस करके बताया है कि अगर लोकेशन 2 डिलीट करनी है तो पॉइंटर में कोई मूवमेंट नहीं होगा पी पॉइंटर में, अगर लोकेशन 3 डिलीट करनी है तो लोकेशन पॉइंटर में एक का मूवमेंट होगा, हर बार 2 का डिफरेंस होगा। तो अगर लोकेशन जो भी वैल्यू है तो लोकेशन -2 टाइम्स पी को मूव करना होगा, तो ये लूप लोकेशन -2 टाइम्स रन करेगा, इसका इटरेशन होगा लोकेशन -2, और पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद पी मूव कर जाएगा सेकंड लास्ट जो भी नोड डिलीट करना है उसके ठीक पहले आके सेट हो जाएगा। जब ये नोड सेट हो जाएगा उसके ठीक बाद हम क्यू को सेट कर लेंगे, मींस क्यू में क्या इनिशियलाइज कर लेंगे, पी एरो नेक्स्ट। अब इसको सेट करने के बाद हमें बीच के नोड को चूंकि हटाना है तो पहले को तीसरे से या ये कह लो दूसरे को पांचवें से इस तरह लिंक करना होगा, दूसरे को चौथे से इस तरह लिंक करना होगा। तो उसके लिए हमने अभी सीखा है कि क्यू एरो नेक्स्ट की वैल्यू को पी एरो नेक्स्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, और जब ये ट्रांसफर हो जाए क्यू की वैल्यू को यूटिलाइज कर लिया हमने, अब क्यू की लोकेशन को फ्री कर देंगे, फ्री क्यू। ये सारी चीजें अभी हमने सीखी हैं, उन्हीं को मैंने प्रोग्रामिंग पर्पज से यहाँ समराइज करके इकट्ठा लिख दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये रन होगा प्रोग्राम। तो बोरलैंड C++ कंपाइलर में मैंने ये रन कराया है, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके इसको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये रन कराना है। ये हमारा प्रोग्राम है। तो चूंकि लिंक लिस्ट में डिलीशन करना है तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब लिंक लिस्ट क्रिएट होगी तभी हम उसमें से नोड को डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, किसी भी पोजीशन से। तो हमने इसके लिए क्या कर लिया, पहले हमने जो लिंक लिस्ट क्रिएशन का प्रोग्राम था उसको लिख लिया। तो लिंक लिस्ट के क्रिएशन का प्रोग्राम हमने लिख लिया, ये जो ऑलरेडी आपको क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में मैंने ये दिखा रखा है, समझा रखा है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये केवल ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया और मेन फंक्शन में आकर के हमने लॉजिक फॉर क्रिएटिंग लिंक लिस्ट फॉर लूप चला के एन नोड की एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली और इस लिंक लिस्ट को यहाँ से डिस्प्ले करा दिया। ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, और अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट वाला वीडियो देखिएगा, तो उससे ये चीज आपको दोबारा क्लियर हो जाएगी। अब जो एक्चुअल लॉजिक डिलीशन का स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने यूजर को ऑप्शन दिए हैं कि वो या तो फ्रंट से डिलीट करे, मीन्स 1 प्रेस करेगा तो फ्रंट से डिलीट होगा, 2 प्रेस करेगा तो एंड से डिलीट होगा, मीन्स लास्ट नोड डिलीट होगा, 3 प्रेस करेगा तो किसी भी लोकेशन 1 से लेके और लास्ट लोकेशन तक कहीं का भी डिलीट कर लेगा। और ये तीनों डिलीशन के केस हो गए। अब अगर वो हर बार डिलीशन करने के बाद चेक करना चाह रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट डिलीट हुई या नहीं, तो 4 प्रेस करके शो फंक्शन या डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू अपनी लिंक लिस्ट को स्क्रीन पे देख सकता है कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ। और अगर सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आप एग्जिट प्रेस करके यानी 5 प्रेस करके आप एग्जिट हो सकते हो। तो अपनी आपने चॉइस एंटर करी, एंटर योर चॉइस, उस चॉइस को CH वेरिएबल में सेव कर लिया और स्विच केस लगा दिया, स्विच CH। अब केस 1 मींस डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करना है। तो ये लॉजिक आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पहले एक पॉइंटर को हेड पर सेट कर लिया, फिर हेड को सेकंड नोड पर मूव कर दिया, फिर पहली लोकेशन को फ्री करा लिया। अब यहाँ पर देखिए एक हमने लिख रखा है इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। ये लिखने का लॉजिक ये है कि जब भी हम डिलीशन करते हैं तो डिलीशन से पहले हम हमेशा अंडरफ्लो चेक करते हैं। अंडरफ्लो मीन्स क्या होता है कि अगर हमने किसी लिंक लिस्ट से सारे नोड डिलीट कर दिए और फिर भी हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा डिलीशन से पहले चेक कर लेना चाहिए कहीं लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं थी, पहले ही उसमें कोई नोड ना रहा हो। अगर पहले ही नोड नहीं है तो उसमें डिलीशन फंक्शन कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम हमेशा डिलीशन से पहले अंडरफ्लो और इंसर्शन से पहले ओवरफ्लो चेक करते हैं।
तो चूंकि ये डिलीशन का केस है, इसलिए हमने चेक किया कि अगर हेड नल होगा, ऑलरेडी हेड का नल होने का मतलब है कि हेड भी कहीं नहीं पॉइंट कर रहा है, यानी कि हमारी लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या प्रिंट करा लेना है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हेड नल नहीं है, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें ये 3 स्टेप लिख करके, 3 इंस्ट्रक्शन पास करके और अपने नोड को हम डिलीट करा लेंगे। सिमिलरली केस टू प्रेस करेंगे तो एंड से डिलीशन हो जाएगा, एंड से मीन्स लास्ट नोड, टेल नोड डिलीट हो जाएगा। उसमें भी हम देखिए डिलीशन जब भी करेंगे तो ये जरूर चेक करेंगे कि कहीं ये अंडरफ्लो का केस तो नहीं। तो हमने दोबारा चेक किया कि अगर हेड नल नहीं है तो ही हमें डिलीट करना है, और अगर हेड नल हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी एंड डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर हेड नल नहीं है, यानी कि उसमें कम से कम एक नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है, कम से कम एक है उसमें अगर, तो एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसको हेड से इनिशियलाइज करेंगे, यानी स्टार्ट नोड से, और जब तक वो सेकंड लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाता तब तक उसको मूव कराते रहेंगे। ए एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, देन मूव ए इज इक्वल टू ए एरो नेक्स्ट, मींस ए नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर जाएगा। अब ये लूप जब पूरा चल जाएगा तो ए हमारा सेकंड लास्ट नोड पे फिक्स हो जाएगा। अब एक पॉइंटर ले लेते हैं लास्ट नोड पे, लास्ट नोड मींस ए का जो नेक्स्ट होगा, जो कि ए खुद सेकंड लास्ट नोड पर है, तो ए का नेक्स्ट मींस लास्ट नोड। तो इस लास्ट ए का नेक्स्ट जो है मींस लास्ट नोड का एड्रेस बी में पास कर दिया, यानी कि बी हमेशा ए सेकंड लास्ट नोड पर है और बी लास्ट नोड पर है। अब इसी लास्ट नोड को फ्री करा लेंगे, फ्री बी, तो ये लोकेशन फ्री हो जाएगी। अब जब लास्ट नोड डिलीट हो गया तो जो सेकंड लास्ट नोड था जहां ए पॉइंट कर रहा था उसी को लास्ट नोड बनाना होगा, तो हम उसकी नेक्स्ट फील्ड में नल रख देंगे, ए एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो हमारा सेकंड लास्ट नोड अब लास्ट नोड बन गया क्योंकि उसकी नेक्स्ट फील्ड में नल स्टोर हो गया। सिमिलरली केस 3 देखिए, केस 3 किसके लिए है, डिलीशन फ्रॉम एनी गिवन लोकेशन। अब देखिए अगर हेड नल नहीं है, यहाँ भी वही सिमिलरली अंडरफ्लो चेक किया पहले कि इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर उसमें कम से कम एक नोड है, मिनिमम एक नोड है, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट करना, अदरवाइज केवल ये मैसेज प्रिंट करा देना है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा नहीं था, मींस कम से कम एक नोड था, तो हमें सबसे पहले यूजर से चॉइस लेनी है कि किस लोकेशन के नोड को डिलीट करना है। वो एलओसी में हमने चॉइस ले ली उसकी कि कौन सी लोकेशन है। अगर लोकेशन 1 हुई तो जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा था केस 1 में, ये केस 1 में डिलीशन फ्रॉम फ्रंट वाला लॉजिक लगा दिया हमने, क्योंकि अगर हम लोकेशन 1 चूज करें मींस हेड नोड हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हमने वही लॉजिक कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया वापस यहाँ पर। और अगर ऐसा लोकेशन 1 नहीं है, यानी कि लोकेशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और एक पॉइंटर ले लेंगे हेड नोड पर, और वहां से फिर लोकेशन -2 टाइम्स मूव करेंगे। ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, लोकेशन -2 टाइम्स उसको मूव करेंगे और फिर एक पॉइंटर बी उसकी भी नेक्स्ट लोकेशन पर लेकर के, और बी का नेक्स्ट ए के नेक्स्ट में ट्रांसफर करके बी को मूव करा लेंगे, फ्री करा लेंगे, तो हमारा बीच का नोड डिलीट हो जाएगा और पहला तीसरे से या दूसरा चौथे से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए केस 4 है डिस्प्ले करने के लिए कि हम जब भी कुछ डिलीट या कहीं से भी डिलीट करेंगे तो अपनी अपडेटेड लिंक लिस्ट को हमें स्क्रीन पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिलीशन होगा मेमोरी में होगा, हमें नहीं मालूम होगा हुआ भी कि नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए हम हर बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे या शो फंक्शन कॉल करेंगे। तो शो में भी देखिए हमने वो लगा दिया हेड इज नॉट इक्वल टू नल, क्यों, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट में हमारे कोई एलिमेंट नहीं है तो शो करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर है, इसीलिए देखिए लगाया है कि इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो इफ रन करेगा, और अगर हेड नल है यानी कि हमारी लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तो एल्स पार्ट रन करेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, सो नो एलिमेंट टू डिस्प्ले, आपको कुछ डिस्प्ले करने के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मींस कम से कम एक नोड भी है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं वही प्रिंटिंग वाला लॉजिक हमने कॉपी कर दिया है कि एक पॉइंटर हेड नोड पर ले लिया, और जब तक वो पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक उसके डेटा को प्रिंट कराएंगे और ए को आगे मूव करा देंगे नेक्स्ट नोड पर। और ऐसे करते करते जब लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा, लास्ट नोड के बाद जब ये मूव करेगा ए एरो नेक्स्ट, तो ए नल हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे सारे नोड की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो चुकी होगी। और अगर हमें चारों ऑप्शन हमने यूज कर लिए, अब हमें कोई ऑप्शन यूज नहीं करना है, तो हम एग्जिट यानी कि 5 प्रेस करके एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिटिंग और ब्रेक करके। और अगर आपने 1 से 5 के बीच में कोई चॉइस नहीं दी है, 1 से 5 के अलावा कोई भी चॉइस दे दी है, 1 2 3 4 5 के अलावा कोई भी चॉइस दी है, तो आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि प्लीज एंटर एनी वैलिड चॉइस। तो ये प्रोग्राम हो गया, हम इसको प्रोजेक्ट मींस कंपाइल करा के देख लेते हैं। देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। अब इसको हम रन कराते हैं, ये स्क्रीन है, मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ।
ये देखिए ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, हमने 5 ले लिया। अब इसकी वैल्यूज हमें देनी है 1 2 3 4 5। तो ये देखिए इसने हमें लिस्ट क्रिएट करके दे दी 1 2 3 4 5, 5 नोड आ गए हमारी लिस्ट में। ये हेड नोड हो गया 1, टेल नोड हो गया 5। अब हमें इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यूजर को ये ऑप्शन दे रखा है। 1 प्रेस करोगे तो फ्रंट से डिलीट करेगा, 2 एंड से डिलीट करेगा, 3 किसी भी गिवन लोकेशन से डिलीट करेगा, 4 हम तब कॉल करेंगे जब हमें डिस्प्ले करनी हो अपनी लिंक लिस्ट को, और अगर हमें कुछ भी नहीं करना है, एग्जिट करना है, तो हम 5 प्रेस करेंगे। तो अभी मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि पहले नोड को डिलीट करें, हेड नोड को डिलीट करें। मींस हम कौन सी चॉइस ले लेते हैं, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, यानी कि 1 चॉइस ले लेते हैं। 1 ले लिया, तो आपको क्या लग रहा है, अगर 1 चॉइस लेंगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम इसको प्रेस करते हैं। अब देखिए इसने डिलीट कर दिया, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको शो फंक्शन कॉल करते हैं। शो कब कॉल होगा, जब हम 4 प्रेस करेंगे। 4 चॉइस एंटर कर दिया। अब देखिए हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5, और अभी जो डिस्प्ले हो रही, पहला नोड डिलीट होने के बाद वो डिस्प्ले हो रही है 2 3 4 5, यानी कि पहला नोड डिलीट हो गया, यानी कि हमारा ये 1 फंक्शन सही वर्क कर रहा है। अब हम सेकंड फंक्शन को चेक करते हैं, डिलीशन फ्रॉम द एंड। डिलीशन फ्रॉम द एंड के लिए हमें 2 प्रेस करना पड़ेगा। हमने 2 प्रेस कर दिया। अब देखिए इसने कहीं एंड से डिलीट कर दिया होगा। एंड से डिलीट करने का मीनिंग क्या हुआ कि 2 3 4 5 से, यानी कि 5 डिलीट हो जाना चाहिए। अब हम 4 प्रेस करके शो करा लेते हैं 4। ये देखिए 2 3 5, पहले क्या था 2 3 4 5, अभी क्या बचा 2 3 4, 5 डिलीट हो गया। अब इसी तरह आप चेक कर लीजिए ये 3 चॉइस को, डिलीशन फ्रॉम एनी गिवन लोकेशन, तो हमने आपकी बात 3 चॉइस ले ली। अब चूंकि लोकेशन वाइज डिलीट करना है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन को डिलीट करना है। अब मान लिया हमने ले लिया लोकेशन 1 को डिलीट करना है। 1 मींस 2 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट अपडेट होकर क्या बची है, केवल 3 एलिमेंट बचे हैं, 2 3 एंड 4। तो अगर हम फिर भी लोकेशन 1 लेते हैं, लोकेशन मींस 2 डिलीट होगा। देखिए अब अगर आपको देखना है डिलीट हुआ कि नहीं, तो 4 प्रेस करिए। ये देखिए हमारी लिंक लिस्ट में 2 3 4 था, अभी क्या बचा 3 4, यानी कि हम ये 2 डिलीट कर लिया। अब इसी तरह अगर हम लोकेशन 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, जो बची हुई लिंक लिस्ट है, अपडेटेड लिंक लिस्ट है, उसमें से हम लोकेशन 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले तो हमने 3 चॉइस ले ली, जो कि हमें ऑप्शन दे रही है कि डिलीशन फ्रॉम एनी गिवन लोकेशन। अब लोकेशन पूछ रहा है, तो हमने मान ली लोकेशन 2 डाल दिया, तो यानी कि 3 4 बचा था हमारी लिस्ट में, तो 4 डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए 4 प्रेस करके हम देखते हैं, ये देखिए केवल 3 बचा। पहले हमारी लिंक लिस्ट में 3 और 4 था, अभी केवल 3 बचा है। अब अगर इसको भी डिलीट कर देते हैं, देखिए 1 प्रेस कर देते हैं, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, चूंकि एक ही नोड बचा है, तो वही फ्रंट है, वही एंड है, वही टेल नोड है, वही पहला वही आखिरी है। तो अगर हम 1 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी ले लें, तो वही डिलीट 3 को ही डिलीट करेगा। अब तो मान लिया हमने 1 चॉइस ले ली, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, और अब फिर से हम 4 प्रेस करके शो कराते हैं। अब देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, लिस्ट इज एम्प्टी, चूंकि हमने आखिरी नोड को भी डिलीट, आखिरी नोड 3 था, उसको भी हमने 1 कॉल करके डिलीट कर लिया। तो अब ये प्रिंट कर रहा है लिस्ट इज एम्प्टी एंड नो एलिमेंट इज टू डिस्प्ले। अब मान लीजिए फिर हम एक बार 1 प्रेस करते हैं, फिर हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम फिर भी जबरदस्ती डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखा ये हमने जो हेड इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जो अंडरफ्लो की कंडीशन लगाई थी, वो उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिल रहा है। अगर वो कंडीशन नहीं लगाई होती तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता। अब हम लास्ट चॉइस 5 को प्रेस करके देख लेते हैं, 5 एग्जिटिंग, और ये हमारा एग्जिट कर गया। अब मैं आपको वापस अपने प्रोग्राम पे लिए चलता हूँ। ये देखिए हमारी जो लिस्ट थी, ये हमने लास्ट जो था वो भी चेक कर लिया, हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देख लिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि डिलीशन की सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो वॉच करिए, आधे अधूरे देखने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चैनल का नाम है इजी लर्निंग विद कृष्णा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपका सुझाव हो, कोई भी सजेशन आपका है, कुछ इसमें चेंजेस आपको लग रहा है कि करने चाहिए जिससे और बेटर बने, तो आप kbdeduchannel@gmail.com पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।